Hi everyone, today we are going to cover chapter 6 credit risk measurement and management. इस चैप्टर में अपन क्या कवर करने वाले हैं, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम ओनली कि अपन ने रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारे रिस्क पढ़े हैं, बट इस चैप्टर में अपन सिर्फ मेनली फोकस करने वाले हैं क्रेडिट रिस्क पे. एंड क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट के अंदर every aspect will be covered regarding credit risk, including its management and measurement, including the qualitative tools which are required for credit risk, types of credit risk, etc. So let's start. Chapter 6 Credit Risk Measurement and Management. This chapter we will be covering in three parts. So let's start with part 1. What will be the learning outcomes of this chapter? Understanding the component of credit risk, evaluating credit risk, mitigating the same, using quantitative and quantitative techniques to manage the credit risk, and the credit scoring models given by various types of authors like PICO, etc. Then understanding credit risk. What is credit risk? Credit risk is also known as counterparty risk. क्या होता है नॉर्मल सेंस में क्रेडिट रिस्क? आपने किसी को सामान बेचा फॉर एग्जांपल और उसने आपको अमाउंट वापस रिटर्न नहीं किया, पे नहीं किया, तो दैट इज अ काउंटर पार्टी रिस्क कि आपने सामने वाले पे भरोसा किया, बट वो कैसा करेगा, उसका रिएक्शन कैसा होगा, वो टाइम पे आपको पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, दैट रिस्क ऑलवेज रिमेन्स. While in non-banking business, the credit risk is related to promised payment for goods and services supplied. And in the context of banking business, it means failure or refusal to refund the loan. इसका क्या मतलब है? क्रेडिट रिस्क दोनों टाइप के बिजनेसेस में होता है, इन बैंकिंग बिजनेस ऑल्सो एंड इन नॉन बैंकिंग बिजनेस ऑल्सो. इन बैंकिंग बिजनेस के अंदर क्रेडिट रिस्क मीन्स failure or refusal to refund the loan. You have given the loan, but the other party is not ready to repay the loan or is not in a position to repay the loan. So that is a credit risk in banking business. And in non-banking business, credit risk is related to promised payment for goods and services. You have sold the goods and services and in return, payment is due, but the other party is not paying or is not capable to pay. That is the credit risk in non-banking businesses. Then there are some features of credit risk. First, this is a two-way risk. Credit risk is a two-way risk since there can be in banking business first. Normally it means failure or refusal to refund the loan, but it can be from the borrower side also the risk, because if borrower is not able to pay or the condition of his is not so good, the lender can also stop the payment and और उसको extra loan ना दे, तो दोनों तरफ से रिस्क हो जाता है. एंड इन नॉन बैंकिंग बिजनेसेस जैसे फर्स्ट केस हो सकता है कि प्रॉमिस पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं हुआ, तो दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि उसका क्रेडिट सिबिल स्कोर इतना खराब है कि उसको कोई गुड्स ही सेल करने को रेडी ना हो. सो क्रेडिट रिस्क इज अ टू वे रिस्क. देन क्रेडिट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. एज वी हैव ऑलरेडी रेड कि रिस्क और रिटर्न एक ही कॉइन के दो एस्पेक्ट्स हैं. सिमिलरली जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज होता है वैसे वैसे रिटर्न इंक्रीज होता है, एंड जैसे जैसे रिस्क अपन कम लेने को रेडी होते हैं वैसे वैसे रिटर्न भी कम होता है. सो देयर नीड्स टू बी फाइंड आउट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. जितना आप रिस्क लेने को रेडी हो एंड जितना आप रिटर्न चाहते हो उतना आपको रिसीव हो. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड अ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन क्रेडिट रिस्क एस्पेक्ट ऑल्सो. Credit risk in capital market. Credit risk in capital market means credit risk analysis from bank's point of view will be an umbrella covering credit risk of other financial institution. Bank क्या होता है? Bank एक intermediary होता है between provider of funds and seeker of funds. बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम वन ग्रुप एंड प्रोवाइड करता है फंड्स टू अदर ग्रुप्स. क्योंकि बैंक ग्रांट करता है क्रेडिट, इट एक्सेप्ट्स द रिस्क ऑन रेगुलर बेसिस. Hence, banks evaluate the experience and incorporate lessons from failure in a routine manner. बैंक दोनों सेगमेंट्स को कैटर करता है, होलसेल एज वेल एज रिटेल सेगमेंट्स. एंड द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल सेगमेंट एंड होलसेल सेगमेंट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व. दैट इज क्रेडिट रिस्क इन कैपिटल मार्केट. ये अपन ने शॉर्ट में पढ़ा, आगे अपन रिटेल सेगमेंट्स, होलसेल सेगमेंट्स बाकी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. सो अपन ने नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग ले ली क्रेडिट रिस्क की. नाउ वी विल गो इन डेप्थ, स्टार्टिंग विद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क. There are three types of components of credit risk. आप इसके साथ साथ ना पढ़ते पढ़ते इसका टेबल बनाते जाओ तो इट वुड बी बेटर. एक चार्ट ट्री जैसा बनाते जाओ कि जैसे क्रेडिट रिस्क क्या तीन पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट डिफॉल्ट रिस्क है, देन सेकंड एक्सपोजर रिस्क है, एंड थर्ड इज रिकवरी रिस्क. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिफॉल्ट रिस्क. व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉल्ट रिस्क? अगर आपका जैसे ना क्रेडिट दे दिया सामने वाले को एंड उसके बाद डिफॉल्ट हो जाता है, दिस रिस्क मीन्स द मिसिंग अ पेमेंट ऑब्लिगेशन. तो सामने वाले ने डिफॉल्ट कर दिया, आपने किसी को लोन दिया एंड ही डिफॉल्ट, दैट इज डिफॉल्ट रिस्क. डिफॉल्ट रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, कि उसका अपन पूरा स्टडी करते हैं कि उसका क्रेडिट स्कोर कितना है, उसके बेसिस पे वी विल फाइंड आउट कि कितना प्रोबेबिलिटी कि उसका डिफॉल्ट हो सकता है.
सो फर्स्ट तो अपन को पता नहीं होगा ना कि कितना डिफॉल्ट होगा, तो जब अपन डिफॉल्ट रिस्क मेजर कर रहे हैं तो फर्स्ट वी विल नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, और वो डिपेंड करता है ऑन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोअर, which in turn depends upon various factors such as management of organization, size कैसा है बिजनेस का, strength और reputation कैसी है promoters की, etc. तो ये हुआ फर्स्ट डिफॉल्ट रिस्क. देन सेकंड एक्सपोजर रिस्क. व्हाट इज एक्सपोजर रिस्क? डिफॉल्ट रिस्क मतलब डिफॉल्ट का कितना रिस्क है, एक्सपोजर रिस्क मतलब फ्यूचर में आपने कितना अपना लोन दे रखा है उतना ही रिस्क हो सकता है आपके पास मैक्सिमम. This implies the uncertainty associated with future level or amount of risk. For example, आपके पास 100 करोड़ का अमाउंट है, बट अगर आपने 60 करोड़ ही लोन के फॉर्म में दे रखे हैं, then the maximum exposure risk can be only 60 crore, because the uncertainty is only associated with the 60 crore. The remaining 40 crore is पहले से आपके पास. And in other words, the risk is mainly associated with unexpected action of other party, say prepayment of loan before due date or request a refund of deposit before due date, etc. सो ये हुआ एक्सपोजर रिस्क. देन थर्ड क्या है? रिकवरी रिस्क. ये रिस्क इज रिलेटेड टू रिकवरीज. अगर डिफॉल्ट हुआ तो हाउ मच विल बी रिकवर्ड. ऐसा तो होता नहीं कि डिफॉल्ट हो गया मतलब का 100% डूब जाएगा. एज यू हैव ऑल्सो स्टडीड ना, दूसरे वाले आईबीसी पढ़ते हैं अपन, जैसे लिक्विडेशन पढ़ते हैं, तो क्या होता है कुछ परसेंटेज होता है जो रिकवर हो जाता है. So this risk is related to recoveries in the event of default, which in turn depends upon various factors such as अगर आप किसी को लोन देते हो तो ऐसे ही तो नहीं देते, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आपने या तो कोलेटरल लिया होगा या कोई गारंटी होगी, तो उसकी गारंटी की क्वालिटी क्या है, कोलेटरल कैसा है, उसके बेसिस पे रिकवरी रिस्क डिपेंड करता है आपका कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो हाउ मच विल बी रिकवर्ड. So on this basis, in the recovery risk, there are two types of risk: collateral risk and third-party guarantor risk. First, collateral risk. Collateral reduce करता है अपना credit risk को, but it happens only if collateral can be sold at a significant value. तो collateral की valuation जो किया है वो perfect है या नहीं, और जब अपन उसे सेल करने गए मार्केट में तो मार्केट की कंडीशन क्या है, that also impacts the collateral risk. The quickness in realization of collateral depends upon its nature and prevailing market conditions. Normal course में fixed asset collateral normally carries low realizable value than cash collateral. फिर कैश या बैंक अकाउंट को कोलेटरल में रखा है तो इट्स इजी, और अगर कोई एसेट है तो उसको रियलाइज करने में भी टाइम जाता है. तो विद द यूज ऑफ कोलेटरल द क्रेडिट रिस्क बिकम्स टू फोल्ड. अगर अपन कोलेटरल रिस्क है तो कोलेटरल रिस्क में दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक तो लिक्विडिटी रिस्क और एक लीगल रिस्क. लिक्विडिटी रिस्क क्या? आप कोलेटरल बेचने गए लेकिन मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं और लिक्विडिटी प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपका कोलेटरल रियलाइज तो हुआ लेकिन कम वैल्यू में. सो एक रिस्क तो ये है. और दूसरा, अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू एक्सेस द कोलेटरल एंड डिस्पोजिंग एनकम्बरेंसेस. फॉर एग्जांपल, अगर कोलेटरल में कोई लैंड है लेकिन अगर उस लैंड पे कोई डिस्प्यूट निकलता है तो फिर वो लीगल रिस्क आ जाता है अपने कोलेटरल पे. देन सेकेंड, थर्ड पार्टी गारंटी रिस्क. और क्या रिस्क हो सकता है रिकवरी के केस में? थर्ड पार्टी ने कोई गारंटी दी लेकिन थर्ड पार्टी फेल हो जाए, पता चला कि अपना लोन तो पेमेंट हुआ नहीं हुआ एंड थर्ड पार्टी खुद फेल हो चुकी है, तो फिर थर्ड पार्टी गारंटी रिस्क आ जाता है. दिस कोलेटरल इज अ काइंड ऑफ सिंपल ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑन गारंटर, एंड इन केस गारंटर डिफॉल्ट देन रिस्क अगेन कम्स बैक टू लेंडर. सो ये अपन ने पढ़ लिए कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क. देन मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रेडिट रिस्क. मतलब दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक तो मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. इसको कैसे मेजर करते हैं इस रैंडम लॉस को? फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज्ड: D into A into 1 minus R. D is equals to default percentage, A is equals to amount of exposure and R is equals to recovery rate percentage. एंड अगर आप सब रिकलेक्ट कर पा रहे हो तो these are only the components of credit risk जो अपन ने पहले पढ़े ना अभी. तो क्या हो रहा है, जो भी डिफॉल्ट रिस्क का प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट कैलकुलेट किया आपने वो मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ एक्सपोजर. फ्यूचर में जो एक्सपोजर जिसपे अनसर्टेनिटी है, जो 60 करोड़ अपन ने लोन में दिए, वो मल्टीप्लाइड बाय रिकवरी रेट परसेंटेज 1 माइनस आर. 1 माइनस आर मतलब रिकवरी रेट परसेंटेज अपन कैलकुलेट करते हैं कि इतना रिकवर हो जाएगा. सो इफ यू अज्यूम कि 30% रिकवर हो जाएगा, इसका मतलब 70% रिकवर नहीं होगा. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70% से. सो इफ द डिफॉल्ट परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल इज 5% एंड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर इज 60 करोड़ एंड दिस रिकवरी परसेंटेज इज 30%, तो अपना रैंडम लॉस कितना होगा? 5% multiplied by 60 crore multiplied by 70%, that is equals to random loss. Then second, factors affecting the credit risk. Factors affecting the credit risk are again of two types: internal factors and external factors. So सब कुछ examples दे रखे हैं बुक में.
internal factors के as well as external factors के. What are internal factors? These factors are internal to the bank. For example, credit concentrated in particular geographical location or business segment, या फिर excessive lending कर दी किसी particular industry को, then ignoring the purpose for which loan was sought by the customer. For example, customer ने लोन लिया था वो business expansion, but उसको यूज कर लिया general corporate purposes के लिए, या फिर उसको यूज कर लिया अपने personal purposes के लिए. Then poor quality or liberal credit appraisal while granting the loan. जब लोन दिया तो credit appraisal का process ही सही नहीं है. Then absence of efficient recovery mechanism, etc. Then external factors. These factors are external to the bank and beyond its control, जो कि पूरे के पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं. Some of such external factors are exchange rate में fluctuation, government policies change हो जाना, interest rate में fluctuation, political environment change हो जाना, and in case of foreign project, change in country risk profile. जो अपने country risk पढ़ा, तो अगर foreign project होता है तो वो country risk उससे affected होता है. So अगर वो होता है तो उसकी वजह से external factor की वजह से अपना credit risk भी affect हो जाता है. तो ये अपन ने पढ़ लिया measurement of credit risk in banking transactions and factors affecting the credit risk. Then types of credit facilities. पहले अपन ये तो पढ़ लें कि बैंकिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग क्रेडिट फैसिलिटी होती क्या है, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ना अच्छे से कि क्रेडिट रिस्क कैसे आएगा. सो अपन टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी पढ़ते हैं. तो मेजरली अपन ने जैसे डिस्कस किया था ना कि रिटेल एंड होलसेल दोनों को कैटर करता है बैंकिंग बिजनेस. सो सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे वो रिटेल फाइनेंसिंग एंड होलसेल फाइनेंसिंग. ये बाइफिकेशन सबसे पहले क्रेडिट फैसिलिटी का. सो व्हाट इज रिटेल फाइनेंसिंग? दिस रेफर्स टू द कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज. जो कस्टमर से डायरेक्ट डील होता है और कस्टमर्स को जो लोन्स चाहिए होते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन रिटेल फाइनेंसिंग. दिस इंक्लूड मॉर्गेजेस, कोई पर्सनल लोन दिया या डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एजुकेशन लोन है, व्हीकल लोन है, एटसेट्रा. एंड दिस इज यूजुअली कॉल्ड एज द B2C टाइप ऑफ फंडिंग, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को दे रहे हैं. And wholesale financing, that is not offered to the normal customers retail segment, it is offered to the corporates, large corporate of various sectors, real estate developers, international trade finance, business, etc. इनको किस तरह के लोन चाहिए होते हैं? टर्म लोन है, प्रोजेक्ट लोन है, कोई डिमांड लोन है, कोई वर्किंग कैपिटल लोन है, etc. And generally it is called as B2B, that is business to business. सो एक तो ये कैटेगराइजेशन हुआ रिटेल एंड होलसेल फाइनेंसिंग. बट रिटेल एंड होलसेल फाइनेंसिंग के बाद भी टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी के बाइफिकेशंस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंड बेस्ड, दैट द फैसिलिटी इज फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज रिलेटेड टू फंड बेस्ड फैसिलिटीज अपन पहले डिस्कस करने वाले, देन नॉन फंड बेस्ड. सो फर्स्ट इज फंड बेस्ड. फंड बेस्ड में सबसे फर्स्ट क्या दे रखा है? पर्सनल लोन. तो पर्सनल लोन किसके लिए हो सकता है? रिटेल फाइनेंसिंग का एस्पेक्ट है. Personal loan, also called as consumer loans. ये loans unsecured होते हैं in nature and are advanced on the basis of borrower का credit history and ability to repay the loan from personal income. Repayment generally fixed amount of installments होता है fixed term के लिए. And these loans generally unsecured होते हैं. Then second kind of, that is mortgage loan or home loan. This is also a kind of retail financing, क्योंकि ये सिर्फ retail consumers को चाहिए होता है. So what is a home loan? A loan that is secured बाय प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट. जनरली आपने देखा होगा, आप अपने घर के लिए लोन लेने जाओगे ना तो क्या होता है, लोन दे देते हैं, आपके जो घर के पेपर्स है उसको कोलेटरल की तरह रख लेते हैं. सो दिस इज अ सिक्योर्ड लोन. In exchange of fund received by borrower to buy a home or property, lender gets a promise from the borrower to repay the loan within a certain time frame. Then third kind of loan, working capital loan. Generally it comes under wholesale financing, because क्योंकि जो भी बिजनेसेस होते हैं उनको जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए उनको वर्किंग कैपिटल लोन्स चाहिए होते हैं. दिस लोन्स आर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग द एवरीडे ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी. सो वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अपन पहले इसका पूरा पढ़ लेते हैं, बिकॉज वर्किंग कैपिटल लोन का जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए अलग से डिफाइंड क्राइटेरिया, दैट इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर RBI है ये रिक्वायरमेंट जो कैलकुलेट करनी पड़ती है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वर्किंग कैपिटल इज असेस्ड, दैट हाउ मच इज द working capital assessment of the business and how much can be sanctioned by the bank. So इसके तीन methods है. There are three methods of working out the maximum amount that a company or borrower may expect from the bank. First method है 75% करो of current assets minus current liabilities, और current liabilities में bank borrowings को include नहीं करना है. And the borrower should provide the remaining 25% from long-term sources. Minimum current ratio under the same method works out to 1:1.
अंडर मेथड 2 क्या करते हैं, करंट एसेट्स का पहले 75% कर लो और उसके बाद जो करंट एसेट्स का 75% पोर्शन आता है उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो अदर देन बैंक ऑडिट्स, और बचा हुआ जो 25% ऑफ करंट एसेट्स है वो ब्योरोर को रेज करना पड़ेगा फ्रॉम लॉन्ग टर्म उसके जो भी सोर्सेज है उससे. द मिनिमम करंट रेशियो इन दिस केस नीड्स टू बी 1.33:1. Method 3 is 75% of current assets minus core current assets. What do you mean by core current assets? Current assets which are required and which are mandatorily required for the smooth functioning of the business, that are core current assets. For example, the inventory used in the business. Then minus current liabilities other than bank borrowings. In this way, method 3 के अंदर calculate होता है maximum permissible bank finance. In this, the borrower should contribute 100% core current assets का borrower को contribute करना है, बचा हुआ 25% of balance current assets also from long term sources. और इसके केस में minimum current ratio होता है 1.5:1. सो ऐसे ही अपन जनरली डिस्कस करें तो आपको इजीली पता चल रहा होगा कि सबसे कम आपको वर्किंग कैपिटल लोन कब सैंक्शन होगा, जब मेथड 3 यूज किया जाता है एंड मेथड 2 एंड मेथड 1 रिस्पेक्टिवली. देन वेरियस टाइप्स ऑफ इसके अंदर वर्किंग कैपिटल लोन्स कैसे कैसे हो सकते हैं, दैट कैन बी बैंक ओडी, कैश क्रेडिट, फैक्टरिंग एटसेट्रा. सो व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग. ये अपन कब देते हैं, व्हेन मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम अ बैंक अकाउंट एंड अवेलेबल बैलेंस बिकम nil. In this situation, account is said to be overdrawn. मतलब आपका एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट होना चाहिए. सो आपका एक करंट अकाउंट है और उसके अंदर आपने जितना भी बैंक बैलेंस था वो पूरा यूटिलाइज कर लिया है, और उसके ऊपर भी अगर अपन उस अमाउंट निकालते रहते हैं जिसकी वजह से बैलेंस अपना नेगेटिव हो जाता है, सो दैट इज एन ओवरड्राफ्ट लिमिट. कि आपको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे रखी है बैंक ने कि अगर आपका बैंक बैलेंस फिनिश भी हो गया तो भी आप इतना और निकाल सकते हो, दैट इज बैंक ओडी. Bank fixes a limit beyond which the account holder will not be able to overdraw the account. तो overdraw का एक limit होता है. Legally, overdraft is a demand assistance given by the bank, given for a very short period of time, at the end of which the account holder is supposed to repay the amount. अब loan की तरह लिया है तो आपको repay तो करना ही है. Interest is payable on the actual amount drawn. The second type of working capital loan, that is cash credit. Cash credit is a short-term cash loan to a company. ओवरड्राफ्ट की तरह ही होता है, एक्सेप्ट इसके केस में कोई भी फॉर्मल करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है. ओवरड्राफ्ट के केस में क्या था, करंट अकाउंट है और उसको आप एक्स्ट्रा विड्रॉ करते हो, ओवरड्रॉ करते हो, वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है. लेकिन कैश क्रेडिट के केस में यू डोंट रिक्वायर अ करंट अकाउंट, इट इज नॉर्मली अ शॉर्ट टर्म कैश लोन जो कंपनी को मिलता है. ऑल्सो दिस टाइप ऑफ फंडिंग रिक्वायर सिक्योरिटी डिपॉजिट. इसके केस में आपको पहले बैंक के साथ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ता है. लीगली कैश क्रेडिट इज ऑल्सो अ डिमांड फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन एक्चुअल अमाउंट ड्रॉन. ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दोनों के केस में क्या होता है, अपन को लिमिट्स प्रोवाइड कर दी जाती है कि इतना ओवरड्राफ्ट ले सकते हो आप, इतना कैश क्रेडिट ले सकते हो, और डिमांड लोन की तरह बिहेव करते हैं कि आप जब लोन लोगे बस जितना अमाउंट आपने लिया है उतने पे इंटरेस्ट लगेगा, उतने पे नहीं जितने पे सैंक्शन हुआ है, बस जितना अमाउंट आपने यूटिलाइज किया ओनली दैट अमाउंट विल बी चार्ज फॉर द इंटरेस्ट. देन थर्ड टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन, दैट इज बिल्स डिस्काउंटिंग. As you all have read about the bills receivables and bills payables जो अपन देते हैं अपने परचेज जिससे भी कर रहे हैं या सेल जिसको भी कर रहे हैं उससे, सो अगर अपन उसका डिस्काउंटिंग करवा देते हैं जो, तो वो बैंक डिस्काउंटिंग करता है. So bills purchased or discounted facility enables the company to get the immediate payment against the credit invoices raised by the company. Bank hold करता है invoices till the customer has actually made the payment, and while granting the facility, bank अपने आप को satisfy करता है about the credit worthiness of the customer, कि customer pay back कर पाएगा या नहीं. Only when customer will be able to pay back, तभी company अपन को बैंक को pay back करेगी, and the genuineness of the bill. A limit is fixed in case of the company beyond which bills are not purchased. कि भाई हम इतना आपका अमाउंट का बिल परचेज करने को रेडी है या डिस्काउंट जो भी बोलो आप उसको. Then fourth kind of working capital loan, that is packing credit. Packing credit भी two types के हैं, pre-shipment and post-shipment. So first, what is packing credit? This is the type of assistance given by the bank to enable the company to buy the goods to be exported. जो goods आपको export कर रहे हो, this is a kind of export assistance. Since you are exporting, तो आपको जो भी उस goods को packing करने के लिए या उस goods को procure करने के लिए रुपए लगेंगे, वो बैंक आपको sanction करेगा. That is packing credit. This type of facility is also included a short-term loan. Since working capital loans के type पर हैं, working capital loan itself is a short-term loan. ये टू फॉर्म्स में होता है, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट. व्हाट इज प्री शिपमेंट? इसके नाम से अंडरस्टूड है कि लोन्स और एडवांसेस ग्रांटेड टू एन एक्सपोर्टर फॉर फाइनेंसिंग द परचेज, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग ऑफ गुड्स प्रायर टू शिपमेंट.
शिपमेंट से पहले गुड्स के रिलेटेड जो भी वर्क है उसके लिए जितना भी क्रेडिट चाहिए, दैट इज प्री शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट. एंड पोस्ट शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट, तो पोस्ट शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट क्या होता है? लोन और एडवांस ग्रांटेड टू एन एक्सपोर्टर आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स. गुड्स तो गए, टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स. तो अपना जो भी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है उस टाइम पीरियड के लिए जो अमाउंट चाहिए होता है, दैट इज पोस्ट शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट. Then next kind of working capital loan, that is factoring. What is factoring? This is a financial transaction and a type of data financing in which company अपने accounts receivable को sell कर देती है to a third party called a factor at a discount. इसमें 3 parties involved होती है. factor जो receivables purchase करता है, एक जो receivables अपने sell करता है, और data खुद who has a financial liability that requires him or her to make the payment. तो ये तो अपन ने पढ़ लिए वर्किंग कैपिटल के टाइप्स. देन अपन फिर से अपने फंड बेस्ड फैसिलिटीज पे आ जाते हैं. जो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? पर्सनल लोन, होम लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, एंड नाउ डिमांड लोन. Demand loan is a rare form of loan that can be called for complete or partial repayment by the lender without any prior notice to the borrower. डिमांड लोन कैसा होता है कि कोई फिक्स पीरियड के लिए नहीं दिया हमने, जब भी लेंडर डिमांड करेगा बोरोवर विल नीड टू रीपे इट बैक उसी टाइम. In other words, when the lender demands the money, borrower must pay it. Then next, term loan. What is a term loan? Term loan is repaid in regular payments over a fixed tenure. सर डिमांड लोन कैसा? डिमांड किया और तुरंत लोन को रीपे करना है. टर्म लोन एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है एंड उसकी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स होती है. तो यूजुअली आर टेन्योर बिटवीन 1 to 10 years, बट वो 30 years तक के लिए भी होती है. एंड दिस लोन्स आर टिपिकली एक्सटेंडेड टू मिड एंड लार्ज कॉर्पोरेट. ये जनरली आता है अंडर होलसेल फाइनेंसिंग एंड यूजुअली हैव अ अनफिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. दे आर यूजुअली सिक्योर्ड इन नेचर, क्योंकि अगर अपन 30 साल के लिए किसी को लोन दे रहे हैं या 10 साल के लिए भी लोन दे रहे हैं, तो वी नीड अ collateral, we need a security. So they are usually secured in nature. The security can be in the form of movable or immovable assets like plant and machinery हो गया, land हो गया, building हो गया, etc. Then next kind of loan, that is project or infrastructure loan. प्रोजेक्ट फाइनेंस और लोन्स आर फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट इज प्रोजेक्ट लोन? जैसे आपका कोई, जैसे रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका वर्किंग 2-3 साल तक बनेगा, फिर 10-15 साल तक उसका रियलाइजेशन होगा. तो उस पूरे प्रोजेक्ट के बेसिस पे जब अपन लोन देते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट लोन. सिर्फ कंपनी के बेसिस पे नहीं, बट उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बेसिस पे. So, project finance or loans are financing of long-term infrastructure, industrial projects, and public services, in which project का debt and equity used to finance the project are paid back from the cash flow generated from the project itself. आपका जितना भी debt amount है और जितना भी equity invest होता है, वो सारा payback होता है only from the project का उस cash flow जो generate होता है उससे. These loans are long-term in nature and usually have a tenure of 15 to 20 years. Usually, project financing structure involves a number of equity investors also, which are known as sponsors, and multiple banks होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, 10-20 साल के, इसलिए. और जनरली ये पूरा प्रोजेक्ट के लिए ना एक अलग एसपीवी क्रिएट कर देता है कंपनी, अपने नेम के अंडर नहीं रखता. जनरली स्पेशल पर्पस एंटिटी कॉल्ड अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इज क्रिएटेड फॉर ईच प्रोजेक्ट and thereby shielding other assets owned by the project sponsor for the detrimental effects of a project failure. और ये होता है पूरा का पूरा secured, क्योंकि सेकेंडरी सिक्योरिटी और कोलेटरल वो प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप में सिक्योरिटी होता है. Then going forward, that is microfinance loans. These loans are extended to individuals or entrepreneurs having small businesses जिनका एक्सेस नहीं है बैंकिंग और रिलेटेड सर्विसेज का, बट लोन के रिक्वायरमेंट है उनको. So the two main mechanisms for the delivery of financial services to such borrowers are: first, relationship-based banking for individuals, entrepreneurs, and small businesses के पास relationship देख के, and second, group-based models where several entrepreneurs come together to apply for loans. तो या तो रिलेशनशिप बेस्ड आता है वो कि भाई हम इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर और स्मॉल बिजनेसेस साथ में मिलके लोन ले रहे हैं, या फिर ग्रुप भी आते हैं कि हम पूरा अपना कार्टेल, मतलब कार्टेल टाइप क्रिएट किया है हमने अपना, एंड वी टुगेदर वांट्स टू टेक दिस लोन. Then real estate construction loans. These loans are extended to developers or builders for construction of residential or commercial buildings, including in real estate development. Large ticket loans होते हैं, इनका long tenure होता है approximately 10 to 20 years. Then agriculture and allied services loans. So what are agriculture loan? ये तो अपन को सबको पता है, because सबसे ज्यादा बैंक का जो एनपी अपन ने देखा होगा ना, क्रिएट होता है इन एग्रीकल्चर लोन ओनली. What is agriculture loan? These are advances given to farmers for purchasing farms equipment like tractors, harvesters,
छोटे छोटे रिटेल लोन होते हैं जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट होता है इज हाइपोथिकेटेड टू द लेंडर, कुछ ना कुछ, जैसे घर कोई अपने गिरवी रखता है, कोई अपने, जैसे अपन ने सुना है ना, खेत पूरे के पूरे गिरवी रखे हैं, तो वैसे। then the tenure of the loan usually matches the life of the underlying asset, जो भी एसेट का लाइफ होता है नॉर्मली वही होता है tenure of the loan भी। the repayment of this loan is aligned to the harvesting cycle, और रीपेमेंट कैसे होता है, हार्वेस्टिंग साइकिल के अकॉर्डिंग, बिकॉज फार्मर्स का अर्निंग क्या होता है, जो क्रॉप्स होंगी वही, तो क्रॉप्स का जो भी हार्वेस्टिंग साइकिल है जनरली उसी के अकॉर्डिंग रीपेमेंट ऑफ लोन पे अलाइन होता है, एंड यूजुअली इट इज बाय एनुअली, दैट इज साल में 2 बार पेमेंट होता है। सो ये अपन ने सारे डिस्कस कर लिए फंड बेस्ड फैसिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल लोन, फंड बेस्ड फैसिलिटीज का अपन ने डिस्कस किया। नाउ नॉन फंड फैसिलिटीज। सो अगर आप मतलब समझना चाहते हैं ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंड फैसिलिटीज एंड नॉन फंड फैसिलिटीज, दिस इज वेरी इजी। बैंक, अगर कहीं पे भी बैंक को कैश देना पड़ता है, बैंक को अमाउंट देना पड़ता है एज अ लोन, वो हो जाती है फंड बेस्ड फैसिलिटी। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी क्या होती है, जब बैंक को अभी कोई अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, बैंक अभी सिर्फ गारंटी दे रहा है, विश्वास दे रहा है अपना कि भाई ये अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो हम पेमेंट कर देंगे, बट अभी कोई भी उसका फंड नहीं लगा हुआ। सो दैट इज नॉन फंड फैसिलिटी टू पे। So what is non-fund facility? Where the banks or financial institution do not commit any physical outflow of funds. ये एक nature of promise है made by bank or financial institution in favor of a third party to provide monetary compensation on behalf of their clients only if the clients fail to make the payment. So types of non-fund facilities are bank guarantee and letter of credit are discussed in the module. बाकी fund-based facility, non-fund-based facilities बहुत सारी types की होती है, पर अपन वही डिस्कस कर रहे हैं जो ICAI मॉड्यूल में भी रखा है। सो बैंक गारंटी, बैंक गारंटी इज अ गारंटी फ्रॉम अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक इंश्योरिंग कि लाइबिलिटीज जो भी है वो सारी मेट होगी, क्लाइंट हमारा पे बैक करेगा। इन अदर वर्ड्स, इफ द डेटर फेल्स टू सेटल अ डेट, बैंक कवर्स इट। अगर हमारा डेटर फेल हो गया ना तो बैंक पेमेंट करेगा। So a bank guarantee enables the customer or debtor to acquire goods, buy equipment, or draw down loans. And second, letter of credit. This is a fund, non-fund based lending, which is very regularly found in international trade. This facility is given when the exporter and importer are unknown to each other. The exporter importer दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है। So अगर अपन उनको सामने वाले को गुड्स भेज रहे हैं और अगर importer ने ले तो लिया, सामान ले लिया, हमारे गुड्स सारे ले लिए, बट पेमेंट देने को मना कर दिया, तो ऑन व्हाट बेसिस वी कैन, मतलब हम उन पर ट्रस्ट कैसे करें। सो क्या करेंगे, इंपोर्टर को पहले लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द एक्सपोर्टर, देन ओनली एक्सपोर्टर विल एक्सपोर्ट द गुड्स on the condition if the importer fails to make the payment, then the bank which is sanctioning the letter of credit will require to make the payment to the exporter. In this case, the importer applies to his bank in his country to open a letter of credit in favor of exporter, whereby the importer's bank undertakes to pay the exporter on fulfilling the terms and conditions specified in the letter of credit. So these are non-fund facilities. Next point, we are going to discuss about classification of assets. And at this point, I expect कि सबको ही ये इसका knowledge होगा, but इसमें एक अपन general understanding और लेते हैं. So what is classification of assets? Every bank or financial institution, after taking into account the degree of well-defined credit weaknesses and extent of dependence on collateral security, classify करते हैं अपने assets को. RBI in its master circular for banks, prudential norms and asset classification have spelled out the following classes. 4 टाइप के: स्टैंडर्ड एसेट्स, सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स, जिन एसेट्स के केस में कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है, shall mean the asset in respect of which no default in repayment of principal or payment of interest is perceived. And second, substandard assets shall mean an asset जो कि क्लासिफाई हो चुके हैं NPA for the period not exceeding 12 months. तो उनको NPA क्लासिफाई कर दिया है पर 12 months से ज्यादा के लिए नहीं, that is substandard assets. Doubtful assets क्या होते हैं? Asset which remains substandard for a period more than 12 months. 12 महीने से ज्यादा के लिए हो गया तो doubtful assets. And loss assets, एसेट जो इतना एडवर्सली अफेक्ट हो गया है बाय पोटेंशियल थ्रेट ऑफ नॉन रिकवरेबिलिटी, बिल्कुल ही नॉन रिकवरेबल लग रहा है और इतना ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो गया है इस थ्रेट से, इसका वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इरोड हो चुका है या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी है, तो बिल्कुल मतलब एसेट आपका डूब चुका है. सो दैट इज लॉस एसेट. Loss asset could be identified as such by the bank or financial institutions or its internal or external auditor. तो अपने substandard assets और doubtful assets का classification हो रहा है on the basis of non-performing asset. So first we need to understand what is non-performing asset. Non-performing asset shall mean an asset
in respect of which interest or principal has remained overdue for a period of 3 months or more. तो अगर आपका कोई भी एसेट है जिसमें 3 महीने तक उसका इंटरेस्ट या उसका प्रिंसिपल जो ड्यू था वो पे बैक नहीं होता है, तो वो एसेट कन्वर्ट हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर 12 महीने से कम तक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहता है, दैट मीन्स इट इज इन सबस्टैंडर्ड एसेट। और अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए हो जाता है, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू डाउटफुल एसेट। Banks write off assets which are non-collectible, removing it from the balance sheet, and a reduction in the value of an asset or earnings by the amount of an expense or loss is called write-off. So 4 टाइप के एसेट पढ़े अपन ने। वो एसेट्स जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो एनपीए कन्वर्ट हुए, ना उनमें कोई पॉसिबिलिटी लग रही है, वो स्टैंडर्ड एसेट्स। अगर फिर एनपीए कन्वर्ट हो गया मतलब प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू रह गया फॉर 3 months और मोर, वो एनपीए हो गया। और अगर एनपीए 12 मंथ से कम तक के लिए है तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स। एनपीए 12 मंथ से ज्यादा के लिए देन इट इज डाउटफुल एसेट्स। और एसेट्स में डाउटफुल एसेट से या तो वो खुद या फिर उसमें ऐसी कोई क्वालिटीज लग रही है कि उसका पूरा सिक्योरिटी हो चुका है, या फिर वो अनसिक्योर्ड है और अपन को लग ही रहा है कि द पर्सन विल नॉट बी एबल टू पे बैक, सो देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इट कैन बी ट्रीटेड एज लॉस एसेट्स। देन ये अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स पढ़ लिया। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, इवेल्युएटिंग क्रेडिट रिस्क। तो अपन को क्रेडिट रिस्क इवेल्युएट तो करना ही पड़ेगा। अपन ने सबसे पहले क्या किया, अपन ने अभी तक क्रेडिट रिस्क में अपन ने समझा कि व्हाट इज क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क का अंडरस्टैंडिंग लिया। देन we discussed about the components of credit risk कि credit risk के पार्ट क्या क्या होते हैं, क्या क्या रिस्क होता है। on that basis how we can measure and calculate the credit risk, कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्रेडिट रिस्क को अफेक्ट करते हैं। देन वी रेड अबाउट द क्रेडिट फैसिलिटी सो दैट वी कैन गेट टू नो भाई कौन कौन सी क्रेडिट फैसिलिटी होती है, कौन कौन सा लोन होता है जिसके बेसिस पे क्रेडिट रिस्क आ सकता है, डिराइव हो सकता है। तो अपन ने उसके लिए सारी फैसिलिटीज डिस्कस की। फिर भी डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स जो कि आरबीआई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग दे रखा है। नाउ अपन ने क्रेडिट रिस्क मेजर भी कर लिया। अब अपन को क्रेडिट रिस्क को इवेल्युएट करना है कि आखिर वो क्रेडिट रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, टू फाइंड आउट द सेम। सो व्हाट आर द ग्राउंड रूल्स टू इवेल्युएट क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क को इवेल्युएट करने के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स दे रखे हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द रियलिटी। As a lender, you need to ensure that you made your customer aware of all the charges and fees associated with the credit which you are planning to extend to the customers. So understand the reality, मतलब आपका अपन ने जितना भी क्रेडिट दे रहे हैं ना, तो पहले कस्टमर को पूरा एक्सप्लेन करो कि ये सिचुएशन है, इतना आपका लोन अमाउंट है, इतना आपका इंटरेस्ट रेट है, इतना इतना इंस्टॉलमेंट पे करना है, सब कुछ, सो दैट आपको पहले से क्लियर हो। आपने टर्म सारी क्लियर कर रखी थी। So communicate the implicit and non-implicit costs that are associated with it. Even administrative aspects are also important क्योंकि वो भी business decisions को affect करते हैं। Then second, check करो credibility. कस्टमर का क्रेडिबिलिटी चेक करो। पहले कस्टमर को रियलिटी समझाओ, फिर कस्टमर का क्रेडिबिलिटी चेक करो। इट मे बी पॉसिबल कि कस्टमर बाहर से तो बिल्कुल रिलायबल लग रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर सच में फुल एबिलिटी है उसकी कि वो पे ऑफ कर ही पाएगा। So you need to understand the credibility that the customer possesses. और उसके लिए लेंडर ऑर्गेनाइजेशन को रिलाई करना पड़ता है वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। जैसे कि कॉर्पोरेट के केस में वेरियस टाइप्स ऑफ रेटिंग स्कोरिंग मॉडल्स के थ्रू रिपोर्ट्स आती है, इकरा की, केयर की, एक्सेट्रा। देन आस्क एंड चेक द रेफरेंसेस। तो क्रेडिबिलिटी एक तरीका ये भी है चेक करने का कि रेफरेंसेस ले सकते हो, एंड रेफरेंसेस मेजरली रिटेल फाइनेंसिंग में यूज होता है बिकॉज नॉर्मल इंडिविजुअल का कोई भी ऐसा आपको रेटिंग रिपोर्ट नहीं मिलेगा। तो व्हाट यू कैन टेक इज रेफरेंसेस। कोई ऐसे पर्सनैलिटी उसके बिहाफ पे गारंटी दे रहा है जिसको आप पहले से जानते हो, जिसके साथ बैंक का पुराना रिलेशनशिप है। So it's absolutely okay to ask customers for the references. List of credible clients are much more reliable source than anything else. आपके पुराने कोई क्लाइंट्स हैं जिनको क्रेडिट दे रखा है आपने या जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, अगर वो रेफरेंस उनका रेफरेंस मिलता है तो बैंक उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है। Then due diligence. When a lender is convinced to provide a line of credit to the customer, it is his duty to have proper due diligence. Customer का पूरा due diligence की उसकी real situation क्या है, सच्ची में वो इतना पे बैक कर भी पाएगा या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अभी सिचुएशन बिल्कुल बैंक टाइप है और वो सिर्फ अमाउंट ही इसलिए बोरो कर रहा है ताकि वो उसे यूटिलाइज करे और लेके निकल जाए। So this can be achieved by simply visiting the website, assessing the market credibility, etc. Basically, publicly sourced information is pretty useful in such cases. Then next, recovery. Lender organization or its employee must understand that every single rupee invested in the customer has cost involved with it, or like effort should be made to ensure
that this minimal cost of capital should be recovered from the customer. And this can be achieved by simply asking for या तो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग लो, जैसे कि कैश क्रेडिट के केस में होता है कि पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, या फिर कोई कोलेटरल, या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी ऑन विच यू कैन ट्रस्ट। तो रिकवरी का पूरा आप पहले से बना के रखो। The nature of business. One should not hesitate to ask for the nature of business in which borrower is dealing with, and this will give a fair bit item of risk exposure. क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए रिस्क एक्सपोजर अलग होता है, उसका रिस्क आइटम भी अलग होता है। कोई इतना बिजनेस रिस्की ना हो तो आप उसको ज्यादा लोन दे सकते हो सकता है उसे अनसिक्योर्ड भी लोन दे सको, लेकिन कुछ बिजनेसेस इतने रिस्की होते हैं दैट यू कैन नॉट अफोर्ड एन अनसिक्योर्ड नेचर ऑफ लोन। सो नेचर ऑफ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। तो क्रेडिट रिस्क इवैल्यूएट, पहले रियलिटी समझाओ कस्टमर्स को, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करो, उसका आस्क एंड चेक, उसके रेफरेंसेस उससे मांग लो, ड्यू डिलिजेंस अपनी तरफ से जितने भी पब्लिकली सोर्स इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू। रिकवरी के रूल्स, रिकवरी का पूरा तैयारी पहले से कर लो सो दैट आपने सिक्योरिटी ले रही है, कोलेटरल ले रखा है, एक्सेट्रा। नेचर ऑफ बिजनेस तो स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then this we discuss evaluating credit risk, then mitigating credit risk. क्रेडिट रिस्क को मेजर कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, पर जब तक मिटिगेट नहीं करोगे कोई भी चीज का इंपॉर्टेंस नहीं बचेगा। सो सबसे पहले मिटिगेटिंग क्रेडिट रिस्क कैसे होगा? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क करके। Identifying the credit risk is the first step in credit risk management, step where potential risks are identified for a business. All the risks identified may not have a major impact. जैसे अपन ने पढ़ा है ना, probability into exposure, जब तक मेजर इम्पैक्ट नहीं होता तब तक वो क्रेडिट रिस्क उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो आपको इम्पैक्ट कितना होगा, उसका अकरेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, दैट यू नीड टू स्टडी। Hence, it is necessary to study the borrower's profile to understand borrower का financial stability कैसा है, पेमेंट रेगुलर करता है या नहीं, सिबिल स्कोर से पता कर सकते हैं अपन, जो कि डिफॉल्टिंग नेचर कैसा है उसका, आज तक कभी डिफॉल्ट किया है या नहीं, एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर रिस्क, दूसरे माइनर रिस्क भी होते हैं इसमें। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, लेटर ऑफ क्रेडिट अलॉन्ग विद क्रेडिट रिस्क, ये साथ में आते हैं। The historical method of risk identification involves identification of types of risk: credit, market, operational, and liquidity. And how credit risk is mitigated. इसमें भी दो मेथड है, एक फंडेड क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन मेथड्स और एक है अनफंडेड क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन मेथड्स। फंडेड क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन मेथड्स क्या होते हैं? Taking of guarantees and security to support the obligation of the primary borrower predates capital adequacy rules by many centuries. और ये जो टू ब्रॉड कैटेगरीज है ना, फंडेड और अनफंडेड की, ये बेसल टू है। As the name suggests, funded risk credit risk mitigation is that way of risk mitigation where a bank has recourse to cash or buyer's asset in order to money owing to it. In short, अगर borrower पेमेंट नहीं कर पाता है तो अपन उनका कैश ले सकते हैं, उनके एसेट्स पे अपना राइट होगा, that is funded credit risk mitigation method. These are of two types: on balance sheet netting. On balance sheet netting of mutual claims or reciprocal cash balance between the bank and the counterparty creates effective security and collaterals. For example, जैसे बैंक और काउंटर पार्टी की जैसे अपन ने सिक्योरिटी डिपॉजिट पढ़ा कैश क्रेडिट के बेसिस पे, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑन बैलेंस शीट नेटिंग। तो क्या किया, अपन ने उनके साथ डिपॉजिट करा रखा है 50,000 का बैंक के साथ, और बैंक ने अपन को कैश क्रेडिट दे रखा है फॉर एग्जांपल 1 लाख 2 लाख का, तो इतना दे रखा है। तो बैलेंस शीट नेटिंग हो जाएगा कि अगर आपने कभी डिफॉल्ट किया ना तो आपका जो डिपॉजिट है वो सबसे पहले फॉरफिट हो जाएगा। तो दैट इज काइंड ऑफ ऑन बैलेंस शीट नेटिंग। एंड कोलेटरल, जो अपन सिक्योरिटी देते हैं, द एसेट्स ऑफ सिक्योरिटी व्हिच आर रिटेन्ड और डिपॉजिट विद बैंक अगेंस्ट ग्रांट ऑफ एनी लोन, एडवांसेस, डेट और क्रेडिट लाइन। और इसके टिपिकल एग्जांपल्स कैश और कैश इक्विवेलेंट है, गोल्ड प्लेज करते जिससे गोल्ड लोन लेते थे, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी है अपनी कुछ और, तो अपना जो भी लोन का सिक्योरिटी दिया है दैट इज कोलेटरल। एंड सेकंड मेथड इज अनफंडेड क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन मेथड। अनफंडेड, अब तक अपन समझ गए ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडेड एंड अनफंडेड। फंडेड जिसमें फिजिकल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होता है, अनफंडेड जिसमें अपन ऐसा कुछ नहीं होता। तो अनफंडेड से ये तो क्लियर है कि देयर इज नो सिक्योरिटी। So unfunded credit risk mitigation methods क्या हो सकते हैं? अब फोकस करो ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोवाइडर। जो भी आपका बोरोवर है उसका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, उसका रिलायबिलिटी कितना है, उसके आज तक के ऑब्लिगेशंस होगा, उसने कैसे बिल्कुल अच्छे से बिहेव किया है उसके साथ या नहीं, उसका मतलब सिबिल स्कोर कैसा है उसके अकॉर्डिंग। As a result, credit protection is only eligible for this purposes if it is provided by an appropriate counterparty. So
अनफंडेड क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन मेथड जनरली अपन किसको देते हैं? नेशनल गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक से, रीजनल और लोकल गवर्नमेंट है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक से, अदर कॉर्पोरेट से जो मीट करते हैं स्टिपुलेटेड क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स, सिर्फ उनको ही अनफंडेड क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन मेथड सैंक्शन होते हैं। Then other techniques or methods of credit risk include और भी यहाँ पे other risk mitigation methods भी है, techniques और methods of credit risk mitigation भी है, जो include करता है following 5: risk based pricing, credit insurance, tightening, diversification and covenants. So let's discuss one by one. रिस्क बेस्ड प्राइसिंग, द लेंडर फील्स दैट बोरोअर इज मोर लाइकली टू डिफॉल्ट। तो जो प्राइसिंग करते हैं ना, जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर ही उस रिस्क को भी रिस्क के अमाउंट को भी डाल देते हैं। तो क्या करते हैं कि फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से। दिस इज कॉल्ड एज रिस्क बेस्ड प्राइसिंग। इन दिस मेथड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज हेज विद द इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट। ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करके आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का रिस्क है उसको आपने उसी में इंक्लूड कर लिया कि अगर फेल भी हो गए तो इंटरेस्ट रेट में आप पहले ही रिकवर कर चुके हो। दिस टाइप ऑफ मेथड मे नॉट प्रोवाइड गुड वर्थ इन टुडे मार्केट, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस इतना है कि अगर आपका रेट दूसरे बैंक से ज्यादा होगा तो जन ऐसा ही होगा ना फिर कि वो जो भी कस्टमर है दूसरे बैंक से लोन ले लेगा। सो ये फीजिबल नहीं है। Then second, credit insurance. Lender may purchase the credit insurance under which the risk is transferred from lender to the issuer on payment of certain amount. क्रेडिट का इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज हाउसिंग लोन इंश्योरेंस, जहाँ पे लेंडर बोरोवर को बोलता है टू परचेज द रिक्विजिट इंश्योरेंस टू इंश्योर द मॉर्गेज इज सिक्योर्ड, and this will ensure that in case of borrower becomes as a default party, lender can recoup the loan. Then tightening. Lender may tighten the norms of lending, including the amount to be lent. मतलब क्रेडिट पीरियड लेंडर अलाउ कर सकता है 45 डेज का, बट पहले ही वो 30 डेज का ही अलाउ करे, सो दैट क्रेडिट रिस्क पहले से मिटिगेट हो जाए। देन डाइवर्सिफिकेशन, लेंडर किसी एक तरह के बोरोअर्स को नहीं एंड वाइड वेराइटी को लोन दे। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं हो कि आपका एक ही इंडस्ट्री में एक्सपोजर है, जैसे ऑटोमोबाइल में तो सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं, इट नीड्स टू बी डाइवर्सिफाइड। आपका ऑटोमोबाइल में भी है, रियल एस्टेट में भी है, शुगर सेक्टर में भी है, इसे डाइवर्सिफाई करके रखो पहले से क्रेडिट रिस्क को। देन कोवेनेंट्स, द लेंडर में पुट सम कोवेनेंट्स लाइक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, रीपे कर देंगे लोन इन फुल इन केस ऑफ सर्टेन इवेंट्स लाइक डेट कवरेज रेशियो इंप्रूवमेंट है या नहीं। तो कोवेनेंट्स पे भी लेंडर ध्यान रखते हैं। तो दीज आर अदर टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। सो अपन पार्ट 1 में बस इतना ही कवर करेंगे एंड बचा जो चैप्टर का पार्ट है विल बी कवर्ड इन अदर 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो अभी अपन ने क्या क्या डिस्कस किया? अपन ने अंडरस्टैंड किया द इम्पोर्टेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क, इवेल्युएट किया क्रेडिट रिस्क, मिटिगेट किया क्रेडिट रिस्क। अब अपने 2 टॉपिक्स बचे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू मैनेज रिस्क एंड क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स। So we'll be soon back and we'll be discussing both this topic in detail in part 2 and part 3. Hope you are liking this. और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे बताओ, तो प्लीज शेयर द सेम, कमेंट द सेम। थैंक यू।